So hello class, we are going to have the concluding lecture number 3 for the unit 3, and unit 3 was all about the strategies and techniques of the technical presentation, how to effectively deliver the presentation that we have gone through. Now in this lecture we are going to see what are the methods of presentation. In the previous lecture we saw that what things are need to be taken care of. Like one of the important thing that we discussed in the previous lecture was the AIDA, the method of presentation, that is attention, interest, desire and action. The basic purpose of giving presentation, we should be taking care of grabbing the attention of the audience, and once the attention has been grabbed, we should be we should be focusing on generating interest towards our subject. And once the interest is developed, there must be a desire generated in the audience towards that topic, towards that product, towards that subject, or whatever the theme might be. And after getting the attention, generating the interest and developing desire, the speaker must be able to call for the action. Means the audience now must be able to take certain action towards that presentation, towards that topic, towards that discussion. So now in this session we are going to discuss the methods of presentation. What needs to be done while delivering the message, while delivering the presentation. The foremost important thing is know the subject. While giving the presentation, whether it is lecture or whether it is in seminar, the topic that I must be selecting should be of my interest. It should be relevant. The reason is, once I am able to select the topic of my interest, I will be committed toward that. I must be taking interest in collecting information. I must be taking interest in designing the content and preparing the document and rehearsing and then delivering. If I myself am not taking interest in the topic, so how would it be possible to effectively deliver the presentation? So only the subject of which an individual has either thorough knowledge or expertise must be chosen. जिस टॉपिक पे मेरा कमांड हो, जिस टॉपिक पे मेरा एक्सपर्टीज़ हो, जिसके बारे में मुझे गहराई से नॉलेज हो, जिस पे मैंने रिसर्च कर लिया हो, वो टॉपिक अगर हम लोग चूज़ करेंगे तो दिस विल गिव मी कॉन्फिडेंस, दिस विल गिव द स्पीकर द कॉन्फिडेंस टू डिलीवर द presentation. He will be better equipped to answer the questions by the audience. He himself is not prepared, then how effectively he is going to present and how effectively he will be able to answer the question. That will be a big question. So by having the topic of your choice on which you are having thorough command, this brings confidence in the speaker and thus helps in attempts of speech articulation. Articulation means it is the ability of the speaker to deliver the message effectively in exactly the same way that in which he wants to deliver. And there are certain things that needs to be taken while selecting the subject. Choose the right subject that will be according to the need, requirement of the audience. ऑडियंस आपको सुनने के लिए इसलिए आ रही है क्योंकि उसको कुछ नया जानना है, उसको अपने किसी प्रॉब्लम का सलूशन जानना है, उसको किसी नए टेक्नोलॉजी पे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो ऑडियंस की जो रिक्वायरमेंट है, जो करंट ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंगली एंड सूटिंग योरसेल्फ ऑल्सो, जिस पे आपका भी कमांड हो उसके अकॉर्डिंग, यानी हमको दोनों मैच देखना पड़ेगा. द टॉपिक about which I am confident, I have thorough knowledge, and the topic that must also be relevant for the audience. So choose the right subject, and after choosing the subject, we must be doing the thorough research to collect material, to collect concept, to collect data for that topic, and then only I'll be able to prepare my presentation. And prepare the presentation carefully and do the rehearsal while giving the actual presentation. So the first thing in the method of presentation is know the subject and then eliminate verbal pauses. You might have listened to various speakers, you might be listening to various lectures, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग स्पीच देते समय कुछ टेक्निकल या नॉन टेक्निकल वर्ड्स का बार बार प्रयोग करते हैं. उसको बोला जाता है वर्बल पॉज, यानी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ठहराव लेना. जैसे कुछ लोग बोलते हैं एक्चुअली बार बार बोलते हैं, कुछ लोग लाइक अपने प्रेजेंटेशन में बार बार बोलते हैं, कुछ लोग बार बार बोलते हैं.
यू नो आई मीन टू से दैट, फिर अपना कुछ डिलीवर करते रहें, फिर यू नो आई मीन टू से दैट। ये इसलिए लोग लेते हैं क्योंकि जो कंटेंट वो डिलीवर कर रहे हैं, द आइडिया इज़ नॉट कमिंग टू द माइंड, सो वो समय बाय कर रहे हैं बाय यूजिंग सच काइंड ऑफ वर्ड्स. So verbal pause is a great distraction while giving the presentation. It is not distraction to you, it is distraction for the audience, because he will be unnecessarily going to listen your verbal pauses, actually what I mean to say, कुछ लोग जैसे शब्द भी यूज़ करते हैं. So this does not sounds good. So these verbal pauses are the hindrance for the sentence flow. और जो मीनिंग ऑफ द वर्ड्स है प्रेजेंटेशन वो ब्रेक होने लगता है. कॉन्टीन्यूटी ऑफ द आइडिया, कॉन्टीन्यूटी ऑफ द मीनिंग गेट्स ब्रोकन बाय योर वर्बल पॉजेज. सो इट इज़ गुड टू एलिमिनेट दिस वर्बल पॉजेज. इसको जितना कम करें, इसको जितना कम इस्तेमाल करें, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल. देन while giving the presentation, your voice quality is of very important. Voice modulation is important. It enhances the quality of the presentation. Now, what is the meaning of voice modulation? It means how we are using the pace. You might have listened to somebody जो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं. So if somebody is speaking too fast, you won't be able to understand anything. If somebody is speaking too slow, you will get bored. Your time is getting killed. So there has to be some appropriate pace, न ज़्यादा कम न ज़्यादा speed वाला. So voice modulation means how fast you are using your words, your presentation. Then voice modulation also includes pitch of your voice. Wherever I am talking about some important information, important issue, I must raise the pitch of the voice. When I am talking in a general case, I must lower the pitch of the voice. Pitch means the frequency of my voice. जो वोकल कॉर्ड होता है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, या तो हाई पिच होता है या लो पिच होता है. तो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, द सिग्निफिकेंस, वी शुड बी वेरिएटिंग द पिच ऑफ द वॉइस. एट अप्रोप्रिएट इंटरवल आई शुड बी गिविंग पॉज टू माई वॉइस. ठहराव, लगातार बोलते नहीं रहना है, बीच बीच में थोड़ा सा पॉज ले लेना चाहिए, सो दैट इट गिव्स टाइम टू द ऑडियंस ऑल्सो टू रिकलेक्ट वॉट एवर इंफॉर्मेशन आई हैव शेयर्ड विद देम. Voice modulation also include how am I using my volume of voice. Again, while emphasizing certain thing, I should be raising my volume. While talking about some sad issues, I should be lowering my volume. So according to the content, I should be changing the volume of my voice. And wherever it is important, wherever it is needed, I should be emphasizing, giving stress to my words. जैसे अभी मैंने ऊंचा कर दिया, stress को highlight करने के लिए. So by the use of pace, pitch, pause, volume and emphasis, I am talking about the voice modulation. So these are the all elements of voice modulation, and voice modulation is important to engage the audience, to get their attraction. एक ही मॉड्यूलेशन में एक ही लय में बोलेंगे तो इट विल बिकम मोनोटोनस. सो वॉइस मॉड्यूलेशन इज़ अ वेरी गुड टूल टू एनहांस द क्वालिटेटिव डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड टू एंगेज द ऑडियंस. ठीक है. और इससे क्या होता है, इट गिव्स द वॉइस और स्पीच द मूड एंड मीनिंग. आपने देखा होगा कोई जो न्यूज़ होगा या कोई बात करता है, जब कोई सैड इशू पे बात करते हैं तो हमारा आवाज़ थोड़ा सा मध्यम हो जाता है. व्हेन वी आर वेरी हैप्पी, द पिच ऑफ द वॉइस इज़ वेरी हाई. सो our voice modulation gives the indication about the mood and meaning also. It enhances it. So what are the techniques that we should be taking care of to create right modulation in speech? Control the speech pace. जो मेरा natural pace है उसके अनुसार हम बात करें. Neither too slow not too fast. Use comfortable pitch of voice. It should be soothing. High pitch इतना high ना हो जाए कि कर्कश हो जाए, low pitch इतना low ना हो जाए कि audible ही ना रहे. To use a comfortable pitch of voice. At regular interval, whenever necessary, take regular pauses so that you are also getting time to relax and the audience is also getting time to assimilate whatever information we have shared. And speak with power, speak with enthusiasm, so that वो energy आपके जरिए वो audience तक पहुँचे. So by effective utilization of voice modulation, the effectiveness of the presentation can be enhanced. The fourth point is, while giving presentation,
we must be careful about the kind of words we are going to use. So think before we speak. If we are using inappropriate words, I am not taking care of what I am going to say, it may hurt the sentiment of the audience, it may give the wrong meaning, it may have the negative connotations. In the written document, in the written presentation, in the written technical communication, you have opportunity to make changes, you have the opportunity to correct the mistakes. बट एक बार आपने वर्बल कम्युनिकेशन कर दिया, वर्बल प्रेजेंटेशन में गलत शब्द का प्रयोग कर दिया, तो देयर इज़ नो टेकिंग बैक. तो वी शुड बी वेरी केयरफुल. सो थिंक बिफोर वी स्पीक. ठीक है. एंड दिस इज़ ऑल्सो यूजफुल टू एलिमिनेट द वर्बल पॉजेस. वर्बल पॉज आदमी क्यों लेता है? क्योंकि उसके पास आइडिया नहीं मिल रहा होता, उसके पास शब्द नहीं मिल रहे होते हैं, तो वो ठहराव आ जाता है और वो एक्चुअली, आई मीन टू से दैट टाइप का रिपीटेटिव फ्रेज यूज़ करने लगता है. लेकिन जब हम पहले से सोचे रहेंगे कि हमको क्या क्या बोलना है, तो वर्बल पॉज को हटाने में मदद मिलेगी. ठीक है. और कुछ ऐसा कहने से हम बच जाएंगे जिसका कोई मीनिंग ना निकलता हो. हम दूसरों की भावनाओं को हर्ट करने से भी बचेंगे. सो इट इज़ एसेंशियल दैट द स्पीकर हैज़ अ क्लियर पर्सपेक्टिव ऑफ द स्पीच. वाई एम आई डिलीवरिंग द स्पीच? व्हाट इज़ द नीड ऑफ द स्पीच? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्पीच? एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी चूजिंग माई कंटेंट, आई विल बी चूजिंग माई वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. So a very good idea to think while speaking is use non-verbal pauses. Non-verbal pauses means जैसे इमोशनल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर्स वगैरह का भी इस्तेमाल करके हम अपने लिए समय परचेज कर सकते हैं राइट वर्ड्स को सेलेक्ट करने के लिए. नंबर 5 इज while delivering the presentation, a time will come when I'll have to conclude. अपने प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करना है. जस्ट लाइक ओपनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. जैसे हमने बात किया था कि किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू किया. बाय गिविंग एग्जांपल, बाय गिविंग मोटिवेशनल कोट, बाय शेयरिंग ए स्टोरी. ठीक है. ताकि ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब हो. आइडा प्रिंसिपल, AID, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन. तो अटेंशन हम कैसे ग्रैब कर पाएंगे? जब हम उसको इफेक्टिव तरीके से शुरू कर पाएँ. तो किसी भी प्रेजेंटेशन को एंड करना भी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द वे आई विल बी एंडिंग माई प्रेजेंटेशन, वो जो लास्ट में चीज़ हम बोल रहे होंगे, दैट विल बी द की टेक अवे बाय द ऑडियंस. जो लास्टिंग इम्पैक्ट जो होता है, हमने कैसे अपने प्रेजेंटेशन को अंत किया, उसका बहुत दूरगामी प्रभाव रहेगा ऑडियंस पे. तो वाइल एंडिंग द प्रेजेंटेशन, हमने पहले के सेशंस में जितनी बात की होगी उसको हमको क्या कर लेना चाहिए? रिवाइज करा देना चाहिए. उसको समरी फॉर्म में प्रेजेंट कर देना चाहिए. सो वॉट एवर की इंफॉर्मेशन आई मे हैव शेयर्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, वाइल एंडिंग आई मस्ट इंक्लूड इन द समरी ऑफ माई कंक्लूडिंग रिमार्क. एंड द स्पीकर मस्ट हाईलाइट ऑल द की इशूज़. और ख़त्म करने से पहले ऑडियंस की तरफ से उनको क्या करना चाहिए? देयर शुड बी ए कॉल ऑफ एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडियंस. एंड ट्राई टू एंड द presentation by motivational quote so that it may have a very effective impact on the audience. While giving the presentation, we should also be careful about the vocabulary. So we should be using appropriate vocabulary. We should be able to use the word that may be able to describe the situation इफेक्टिवली. आपने नावल पढ़ा होगा, नावल पढ़ते समय आपने देखा होगा कि ऑथर जिन तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, उससे आपको वो दृश्य आपके सामने उभरने शुरू हो जाते हैं. तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द वोकैबुलरी. सेलेक्टिंग द राइट वर्ड एट द राइट टाइम टू क्रिएट द मेंटल पिक्चर ऑफ दैट सिचुएशन. So enhancing vocabulary is very important, and the vocabulary cannot be enhanced in one day. For this you have to practice, you need to read a lot, you need to watch the others presentation, you need to watch news channels. So collect and enhance vocabulary as per the need is, and it needs to have a continuous practice on the part of the speaker. ठीक है. A good vocabulary add color to the sentence and to the entire speech. ठीक है. एक मैंने बोला नॉवल पढ़ते समय अच्छे शब्दों के इस्तेमाल से आपके सामने वो दृश्य आ जाता है, तो वो रंग भर देता है आपके प्रेजेंटेशन में. आपके शब्दों के माध्यम से हम सेंटेंस में वो चीज़ कलरफुल बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. कलरफुल का मतलब वो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. वाइल गिविंग प्रेजेंटेशन वी शुड नॉट बी यूजिंग कोलोकियल लैंग्वेज या इनफॉर्मल वर्ड्स जिसको स्लैंग बोलते हैं. जैसे आजकल के भाषा में ब्रो वर्ड यूज होता है. इंस्टेड ऑफ ब्रदर पीपल आर सेइंग ब्रो. They used to call one another dude.
तो इस तरह के, और यस ना बोल करके या बोलते हैं, तो वी शुड बी अवॉइडिंग the usage of the slang and colloquial language. It doesn't sound good in a formal presentation. Informal बातचीत में you can use, but whenever I am going to give a formal presentation, so we should be using the real words. That is in common practice. And next thing that I should be careful, the speaker should be careful while giving presentation is a good command over grammar. A lot of people make mistake while using the pronouns. When they mean to use her, they use the word him. When they use to mean me, they use I. Means subjective case कब use करना है, objective case use कब करना है, इसमें बड़ा common mistake होता है. तो one of the things that need to be care of is proper application of the pronoun. Second thing is the subject verb agreement जो मैं आपको कराता रहता हूँ. इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, एक प्रॉपर कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए. थर्ड थिंग दैट वी शुड बी केयरफुल अबाउट यूजिंग ग्रामर इज एप्लीकेशन ऑफ टेंसेस. अननेसेसरली पीपल ऑलवेज कीप ऑन यूजिंग आईएनजी. अंग्रेजी बोलने का मतलब आईएनजी ही यूज़ करना नहीं होता है. ठीक है, वी हैव 3 टेंसेस और हर टेंस में 4 उसके सब डिविजन्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो किस परिस्थिति में कौन सा टेंस यूज़ करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द हैबिट्स और द यूनिवर्सल फिनोमिना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ गुड. इफ़ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग समथिंग इज़ हैपनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज़ गुड. कुछ बीत गया है, उसका इम्पैक्ट अभी भी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ गुड. पास्ट की हैबिट में बात करना है तो पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो इन सारे टेंसेस का प्रॉपर एप्लीकेशन हमको पता होना चाहिए और उसको प्रॉपरली हमको यूज़ करना है. वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक पीपल यूज़ इज़ आईएनजी फॉर्म का बहुत गलत मिस्टेक. जैसे मैं अभी एग्जांपल दूं कि यू आर लुकिंग गुड, लोग बोलते हैं यू आर लुकिंग गुड, इट्स रॉन्ग. लोग बोलते हैं कि आई एम वांटिंग अ टी, इट्स रॉन्ग. द फ्लावर इज स्मेलिंग गुड, इट्स रॉन्ग. जो वर्ब ऑफ परसेप्शंस होते हैं, इंद्रियों से संबंधित जो वर्ड्स होते हैं, तो परसीव करने के संदर्भ में उनका आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना चाहिए. अब इसका मतलब ये नहीं कि लुकिंग वर्ड नहीं होता है, लुकिंग वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए. तुम क्या खोज रहे हो, तो आई कैन से व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. बट तुम कैसे दिख रहे हो, तो ये वर्ब ऑफ परसेप्शन के दायरे में आएगा. तो परसेप्शन के टर्म में हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे. हमको बोलना चाहिए यू लुक स्मार्ट, यू लुक गुड, यू लुक टायर्ड, द फ्लावर स्मेल्स गुड, द फ्लावर इज़ स्मेलिंग गुड नहीं. तो हम क्या गलती करते हैं, जो ट्रांसलेशन होता है हिंदी में सोचते हैं उसको एग्जैक्टली ट्रांसलेट कर देते हैं. द फ्लावर इज़ स्मेलिंग गुड, बट हमको क्या बोलना चाहिए, द फ्लावर स्मेल्स गुड बोलना चाहिए. सो हैविंग गुड कमांड ओवर ग्रामर विल मेक द प्रेजेंटेशन वेरी इम्पैक्टफुल, वेरी इफेक्टिव. Next thing that I should be taking care of is while giving presentation, it should be very concise, very सटीक होना चाहिए. Unnecessary repetition of information, using the same structure again and again, unnecessary उसको lengthy बना देना, it will distract the audience. So my presentation should be concise. It is very important to stay clear of words and purpose of the speech to engage the audience. जितना कंटेंट कंडेंस्ड होगा, कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा. उसको प्रॉपरली हम लोग को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ब्रीफ बनाने के लिए. वेग कंटेंट शुड बी अवॉइडेड. स्पीक टू द पॉइंट एंड एड्रेस द पर्पस. जिस उद्देश्य के तहत हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मेरा कंटेंट वो पर्पसफुल होना चाहिए. जब पर्पसफुल होगा तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन का रिपीटेशन नहीं होगा. ठीक है. एंड वाइल गिविंग द प्रेजेंटेशन वी शुड यूज़ इमोशन प्रॉपरली. If I am talking about some happy events, my expression should be happy. If I am talking about certain serious thing, my expression should be serious. If I am talking about certain sad thing, so that means my word, my presentation should be compatible with the emotions. The more I am using the emotions in my presentation, I will be easily able to connect with the audience. ठीक है, तो ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन उतना प्रभावी होगा, ऑडियंस मेरे से कनेक्टेड रहेगा और वह एंजॉय करेगा उस प्रेजेंटेशन को. और प्रेजेंटेशन के बीच बीच में लाइट मोमेंट्स लाने चाहिए. बहुत सीरियस इशू है, बहुत लंबे एक ही
टोन में बात कर रहे हैं, एक ही सीरियस इशू पे बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बीच बीच में आपने देखा होगा जो इफ़ेक्टिव ओरेटर्स होते हैं वो ऑडियंस से क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑडियंस के साथ मजाक कर लेते हैं, तो एडिंग ह्यूमर विल री एनर्जाइज दी ऑडियंस, के अंदर ऑडियंस में एक ऊर्जा भर देता है, ठीक है, और उनका इंटरेस्ट दोबारा कैप्चर करने में हमको मदद मिलता है। सो ह्यूमर हेल्प्स टू री एनर्जाइज द ऑडियंस एंड रिकैप्चर देयर इंटरेस्ट एंड इन द सब्जेक्ट। वो सब विषय में फिर वो दोबारा से रुचि नहीं रखते, उनका बोर्डम हट जाता है, ठीक है। लेकिन इस ह्यूमर को यूज़ करना बड़ा एक एक्सपर्टीज़ का काम है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यूज़ इट वाइजली एंड ऑन द इशू ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के आधार पर यूज़ करना चाहिए, जो बात कर रहे हैं उसके दायरे में हो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कुछ लोगों के अंदर, नाउ लेट्स सी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब वो प्रेजेंटेशन देने के लिए आते हैं, दे लूज़ देयर कॉन्फिडेंस, दे हैव द फियर ऑफ द स्टेज, उनका गला सूखने लगता है, दे हैव शिवरिंग लेग्स, और अंधेरा छाने लगता है, एंड वट एवर दे हैव प्रिपेयर्ड दैट ऑल गोज़ ब्लैंक, और वो उनका प्रेजेंटेशन बेकार हो जाता है। तो लेट्स टॉक हाउ टू ओवरकम द स्टेज फियर, लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने में जो डर है उसको कैसे दूर करा जाए। सो 3 थिंग्स आर देयर। स्ट्रेटजी प्रायर टू प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन देने से पहले व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या कर लेना चाहिए तैयारी के फॉर्म में। तो प्रेजेंटेशन देने से पहले हमारा जो टॉपिक है उसमें हम इंटरेस्ट लें, खुद का इंटरेस्ट उसमें रहेगा तो हम एनर्जाइज महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। सो डेवलप एन इंटरेस्ट इन द टॉपिक एंड गिव इनफ टाइम फॉर द प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि कल प्रेजेंटेशन देना है तो आज तैयारी करना है, ठीक है। सफिशिएंट टाइम रहेगा तो हम उस प्रेजेंटेशन के लिए कंटेंट इकट्ठा कर पाएंगे, उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट कर पाएंगे, उसको अच्छे से स्ट्रक्चर कर पाएंगे और रिहर्सल कर पाएंगे। सो रिजर्व इनफ टाइम फॉर द प्रिपरेशन। और प्रेजेंटेशन के बाद ऑडियंस क्या क्या पूछ सकता है, हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, तो उन क्वेश्चंस को एंटिसिपेट कर लेना चाहिए और उनके क्या आंसर होने चाहिए वो प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो जब मैं पहले से प्रिपेयर होऊंगा उनके क्वेश्चंस के बारे में, उनके आंसर्स के बारे में, सो दिस विल गिव मी कॉन्फिडेंस, नर्वस नहीं महसूस होगा, ठीक है। और प्रेजेंटेशन देने से पहले प्रैक्टिस कर लेना चाहिए और ओपनिंग स्टेटमेंट का कई बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। हाउ दिस प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी started, what should be the initial statement, by giving quotation, by giving story or by sharing video, कैसे हमको शुरू करना है, क्योंकि अगर प्रभावी तरीके से शुरू कर पाएंगे हम कॉन्फिडेंटली तो ऑडियंस का अटेंशन और इंटरेस्ट जनरेट कर पाएंगे। एंड रिहर्स द प्रेजेंटेशन टू मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल एंड कॉन्फिडेंस। जितना हम ज़्यादा रिहर्सल कर चुके होंगे उतना ज़्यादा हम कंफर्टेबल रहेंगे, उतना ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। नाउ ये तो हो गया कि प्रेजेंटेशन से पहले, ठीक है। प्रेजेंटेशन देने के ठीक पहले क्या कर लेना चाहिए। हमारा 10 बजे से प्रेजेंटेशन है, 10 बजे पहुंचेंगे तो हड़बड़ी रहेगी, हम माइक नहीं चेक कर पाएंगे, हम पावर पॉइंट स्लाइड्स नहीं चेक कर पाएंगे, हम LCD प्रोजेक्टर नहीं चेक कर पाएंगे, और रन टाइम पे कोई एरर आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि प्रेजेंटेशन से पहले थोड़ा समय लेकर के वेन्यू पे पहुंच जाएं हम लोग, अपना प्रिपरेशन चेक कर लें, इक्विपमेंट्स चेक कर लें, फैसिलिटीज़ चेक कर लें, टेक्निकल जो गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल करना है हमको, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर, लैपटॉप, साउंड सब प्रॉपर है या नहीं है, ये सब चेक कर लेंगे। तो ये सारा चीज़ हमको एक समय मिल जाएगा और कॉन्फिडेंस देगा। और जब हम समय से पहले पहुँच रहेंगे तो गेट टू नो दी ऑडियंस, ऑडियंस को जानने में मदद मिले, किस तरह की ऑडियंस है, कैसी ऑडियंस है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उनके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे। जब उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि वो हमारे प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए क्यों आए, व्हाट इज़ द नीड, व्हाट डू दे वांट, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। तो ये सब चीज़ पहले हम जब पहले से जान लिए होंगे तो उसके हिसाब से हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुके होंगे। जो चेंजेस करना होगा चेंजेस कर लेंगे और अपने आप को कंफर्टेबल बना पाएंगे। ऑडियंस के साथ एक बार इनफॉर्मल बातचीत हो जाएगा तो वो नर्वसनेस दूर हो जाएगी हमारी, ठीक है। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड हैव सम वाटर, लंबी लंबी सांसें ले लें। लंबी सांसें लेने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मलाइज होता है, ठीक है, बीपी वगैरह नॉर्मल हो जाएगा। पानी पी करके अपने आप को रिलैक्स कर लेना चाहिए, ठीक है। और जो वेन्यू है वहाँ पे थोड़ा चहलकदमी करके अपनी एंग्जाइटी को, अपनी चिंता को दूर कर लेना चाहिए और हमको जो बोलना है, हमारा जो टॉपिक है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लेना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी व्हेन द प्रेजेंटेशन बिगिंस। अब प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में स्टेज पे चढ़ गए और तत्काल बोलना शुरू कर दिया। नो, टेक योर टाइम, फील गुड अबाउट द प्रेजेंटेशन, वॉक टू द डायस, आराम से डायस तक जाएं, लंबी सांस लें, हैव अ लुक
एट द ऑडियंस, ऑडियंस की तरफ नज़र डालना है। चूँकि आप पहले से ऑडियंस से मिल चुके हैं तो कुछ परिचित चेहरों को ढूंढ लीजिए, उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करने में आपको मदद मिलेगी, उनको इंगेज करने में मदद मिलेगी। ठीक है, डू नॉट बिगिन इन हरी। ठीक है, एंड स्टार्ट इन अ वेरी फ्रेंडली वे विद अ स्माइल, विद अ जोक, विद अ स्टोरी टू जनरेट देयर, टू ग्रैब देयर अटेंशन। टेक होल्ड ऑफ द डायस टू सपोर्ट योरसेल्फ। और अगर आपको थोड़ा सा नर्वसनेस लग रहा है तो आप डायस को पकड़ करके और स्ट्रेट पोस्चर में खड़े होकर के अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स बाय फॉलोइंग विच वी कैन एलिमिनेट द स्टेज ऑफ द fear of the stage. Now, what are the things that needs to be taken care of for effective and confident speaking? So, verbal elements पे ध्यान दें, यानी जो शब्द वाले वर्ड्स पे, वर्ड्स से रिलेटेड चीज़ों पे कैसे फोकस करें। अगर वर्ड्स पे हम अच्छे अप्रोप्रिएट वर्ड्स सेलेक्ट करेंगे, वर्ड्स को प्रॉपर्ली इस्तेमाल करेंगे, तो मेरा ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। मेक यूज़ ऑफ वर्ड पिक्चर्स, यानी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे वो दृश्य पेंट होता हो, जिससे वो ऑडियंस उस चीज़ को विजुअलाइज कर पाए। गिव स्पीच ए ग्राफिक क्वालिटी बाय पेंटिंग वर्ड्स। यूज़ वार्म एंड इम्पैक्ट वर्ड्स एंड कनेक्ट विद द ऑडियंस। से हेलो टू द ऑडियंस। ठीक है, यूज़ ग्रीट देम वार्मली। तो इससे क्या होगा कि ऑडियंस भी कंफर्टेबल फील करेगा, ऑडियंस का आपके पास कॉन्फिडेंस भी आएगा। यूज़ सिमिलीज एंड मेटाफर्स, यानी अलंकार वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर एनालॉजीज होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर कंपैरिजन होना चाहिए। तो सिमिलीज और मेटाफर्स को इस्तेमाल करके हम अपनी प्रेजेंटेशन के मीनिंग को एनहांस कर सकते हैं। मेटाफर्स मतलब जैसे हो गया कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम कंपैरिजन या एनालॉजी के लिए इस्तेमाल, जैसे माउथ ऑफ द रिवर। रिवर का माउथ थोड़ी ना होता है, बट व्हेन आई से माउथ ऑफ द रिवर, इट मीन्स that the origin of the river, from where the river has originated. Similes यानी तुलनात्मक के लिए कुछ as और like जैसे वर्ड्स का जो इस्तेमाल करते हैं। The audience was packed like sardines, यानी ऑडियंस इतनी भीड़ थी कि वो सार्डाइन मछली की तरफ पैक किए हुए थे, जैम पैक थे। तो बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स वो ऑडियंस उस चीज़ को विजुलाइज करेगा, उसके प्रभाव को समझ पाएगा, इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। एंड एंश्योर द स्मूथ फ्लोज ऑफ आइडियाज, शब्दों का सही प्रवाह, आइडियाज़ का सही प्रवाह बने रहना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स, वर्बल एलिमेंट्स से रिलेटेड हमको केयर करना है। नॉन वर्बल एलिमेंट्स मीन्स हमारा जो ड्रेसिंग है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। वियर फॉर्मल ड्रेस, सिंपल एसेसरीज़, वो यो टाइप का और MTV टाइप का अटायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम फॉर्मल प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं तो हमारा प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। माई बॉडी लैंग्वेज शुड बी अप्रोप्रिएट, प्रॉपर हैंड मूवमेंट, प्रॉपर सिटिंग मूवमेंट, अगर बैठ के दे रहे हैं तो बैठ के, खड़े होकर दे रहे हैं तो खड़े। ठीक है, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ आई कॉन्टैक्ट, कब हाथ का मूवमेंट इस्तेमाल करना है, कब कैसा जेस्चर देना है, दैट शुड बी वेल प्रैक्टिस्ड। स्टैंड टॉल एंड स्ट्रेट, जो कॉन्फिडेंट आदमी होता है उसके आपने देखा होगा वो एकदम सीधा खड़ा रहता है और उसके शोल्डर्स स्ट्रेट रहते हैं। जो नर्वस आदमी होता है उसके शोल्डर्स थोड़े से झुके रहते हैं, नर्वसनेस शो करेगा। तो इन सारी चीज़ों का राइट ट्रेट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज हमको प्रैक्टिस करना है, वो डिस्प्ले करना है। और ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते समय एक प्रॉपर दूरी मेंटेन करना, एकदम नज़दीक आकर के ऑडियंस से इंटरेक्ट नहीं करना, मेंटेन ए प्रोफेशनल डिस्टेंस। हम आगे के यूनिट्स में हम बात करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज जो होता है हमारा, उसमें एक होता है स्पेस का इस्तेमाल करना, दो लोगों के बीच का जो स्पेस होता है उसको कैसे प्रॉपरली यूज़ करना। परिचितों से आप मिलते हैं तो आपके बीच उनके और आपके बीच में दूरी अलग होती है, अनजान आदमी से मिलते हैं तो उनके और आपके बीच में अलग दूरी होती है। तो इन सारे नॉन वर्बल एलिमेंट्स को हमको प्रेजेंटेशन के समय में भी ध्यान देना है। नाउ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए वोकल एलिमेंट पे भी ध्यान देना। वोकल एलिमेंट यानी जो हमारा आवाज़ है, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है, जो हमारा वॉइस क्वालिटी है, उनमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। स्पीक विद एंथुसियाज्म, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उत्साहजनक होना चाहिए मेरा वॉइस। जब मेरे वॉइस में एनर्जी होगा, एंथुसियाज्म होगा, तो वो रिवर्बरेट करेगा हॉल में और ऑडियंस तक वो चीज़ पहुँचेगी। सिंसियरिटी होनी चाहिए मेरी आवाज़ में। बहुत फास्ट डिलीवरी नहीं होना चाहिए, पेस कंट्रोल्ड होना चाहिए। यूज़ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइस अप्रोप्रिएटली, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंटेशन देने के बाद थोड़ी देर के लिए पॉज ले लेना चाहिए, साइलेंस ले लेना चाहिए। उस साइलेंस का भी अपना एक प्रभाव पड़ता है ऑडियंस पे। और हर एक शब्द को जो हम चूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से आर्टिकुलेट करें, एक्सप्रेस करें, यूज़ करें। सो ऑल दीज थिंग्स
while giving the presentation will ensure the effectiveness of the presentation, and it will be the quality of the confident speaking, verbal elements, non-verbal elements, and the vocal elements. So this was all about the Unit 3, Lecture 3. Thank you and have a nice day.